Hello everyone, you all are welcome in class 11th Arun Sir's chemistry classes. In the previous video, we have started with chemical bonding. In that, first I have explained you why the atoms forms bond. Okay, bond means force of attraction, and atoms forms bond to acquire stability. Then I have explained you formation of ionic bond with specific example of sodium chloride, magnesium chloride and sodium sulfide. Now we'll discuss energy changes taking place in the ionic bond, that also I have covered in the previous video. The total energy change should be less. It should be in negative, total enthalpy change, and amount of energy released should be more than the amount of energy absorbed. That is the basic criteria for the stability of ionic bond. Now let us discuss much more factors, that what are the other factors on which the strength of the ionic bond depends. So let us start our video. So today's topic is factors which favor the formation of ionic bond. Right? Factors which favor the formation of ionic bond. So there are three steps of energy changes, and then how do the other factors are responsible for the stability or the formation of ionic bond. First, the metal atom must have low ionization energy. Okay, metal should have low value of ionization energy or enthalpy. Lesser the value of ionization enthalpy, greater is the tendency of the element of the atom to form cation. तो ये फेवरेबल है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए. दूसरी बात, नॉन मेटल एटम मस्ट हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. ग्रेटर द वैल्यू इन नेगेटिव of electron gain enthalpy, more is the tendency of that non-metal atom to form anion. तो ज़्यादा होनी चाहिए एबिलिटी कैटायन बनाने की और ज़्यादा ही होनी चाहिए एबिलिटी एनायन बनाने की. एंड थर्ड फैक्टर, ग्रेटर द लेटिस एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ग्रेटर द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड. लेटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी भी किसमें है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में, एनर्जी रिलीज्ड. ठीक, अब बात आती है कि व्हाट इज एक्चुअली लेटिस एंथैल्पी. तो कल मैंने बताया था कि अगर कभी कोई गैशियस कैटायन एक गैशियस एनायन से कंबाइन करके एक आयनिक सॉलिड बनाता है, इस समय जो एंथैल्पी होती है दैट इज कॉल्ड एज लेटिस एंथैल्पी. कैटायन और एनायन मिलकर के एक मोल आयनिक सॉलिड बना ले, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लेटिस एनर्जी. ठीक है कि नहीं? तो ये लेटिस एनर्जी इस बात को जस्टिफाई करती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड वीक होगा तो लेटिस एंथैल्पी कम होगी. नाउ द डेफिनेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी इज the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from the close packing of gaseous ions of opposite charges, yani cation and anion. Okay, the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed by the close packing of gaseous ions of opposite charges, that is called as lattice enthalpy. The magnitude of lattice enthalpy depends upon, अब किसी आयनिक सॉलिड में lattice enthalpy ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये समझे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला,
साइज ऑफ आयंस, आयन का साइज, ठीक है कि नहीं. स्मॉलर द साइज ऑफ आयंस, lesser is the internuclear distance and greater will be interionic attractions. Hence, more negative will be the value of lattice enthalpy या greater will be the value of lattice energy. ठीक है कि नहीं. जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, lattice enthalpy of sodium chloride is greater than lattice enthalpy of potassium chloride. क्लोराइड क्लोराइड तो चलो सेम है, लेकिन सोडियम का साइज पोटेशियम से कम होता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो उसकी वैल्यू देखो ज़्यादा है, माइनस में 769.8 लेटिस एंथैल्पी और इसकी है माइनस में 698.7 किलो जूल पर मोल. तो NaCl में आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम क्लोराइड. दूसरा फैक्टर आता है चार्ज ऑन द आयंस. सिंपल, अब आयंस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सो लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस, greater will be the attractive forces between them. So therefore greater will be the value of lattice enthalpy in negative. ये बात समझ में आई कि नहीं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डेल्टा LH0 ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विल बी ग्रेटर, ठीक, देन लेटिस एंथैल्पी ऑफ, इसमें +2 चार्ज हैं दोनों के ऊपर, सिंगल सिंगल चार्ज वाले जैसे आप ले सकते हो, ठीक है कि नहीं, या के की जगह आप Na ले लो, Na2O, ठीक है कि नहीं. तो सोडियम पे +1 चार्ज है और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हियर. तो इसकी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है और इसकी लेटिस एंथैल्पी कम. अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ये बहुत सिंपल है. आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, in which cations and anions are systematically arranged in 3D pattern or 3D arrangement. पूरे 3D arrangement में कैटायन और एनायन सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन्स इन द लैटिस एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब एक क्लोराइड के चारों ओर 6 सोडियम आयन होंगे, ठीक है कि नहीं. और जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर मान लीजिए मेरे पास सीजियम क्लोराइड है, इसमें एक सीजियम आयन के चारों ओर 8 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड आयन के चारों ओर 8 सीजियम आयन होते हैं. ऐसे एक सॉलिड होता है जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड में एक जिंक आयन के चारों ओर 4 सल्फाइड आयन होते हैं और एक सल्फाइड आयन के चारों ओर 4 जिंक आयन होते हैं. तो ये फिक्स नंबर होता है, हर एक का अलग अलग होता है, अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स का. सॉलिड स्टेट में जब इनका अरेंजमेंट होता है तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल सी बात है, 8, 9, 10 में ही पढ़ा आपने. इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. इट मीन्स आयनिक बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटर आयनिक फोर्सेस. इंटर आयनिक फोर्सेस को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड. थर्ड प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. क्योंकि सॉलिड स्टेट में सारे आयंस बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं, कोई भी आयन फ्री नहीं होता है. बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर. बट इन एक्वस सोल्यूशन और in molten state,
आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं, बिकॉज आयंस आर नाउ फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट, है ना. वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा. नाउ दोज आयंस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ पॉइंट, ionic compounds are soluble in water and other polar solvents which have high dielectric constants, but these are insoluble in non-polar solvents like benzene, toluene, like that. ठीक. And the fifth point is ionic compounds undergoes fast ionic reactions. मतलब aqueous state में बहुत fast reactions होती हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NaCl, ये सॉल्यूशन में होंगे, इमीडिएटली रिएक्शन हो जाएगी टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3. राइट. फाइनली मैं एक कंक्लूजन पॉइंट दे सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए कि कोई भी मेटल होगा उसकी लो होनी चाहिए आयनिक एनर्जी, नॉन मेटल होगा तो हाई होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसकी होनी चाहिए हाई लैटिस एंथैल्पी. ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड. ये कंक्लूसिव पॉइंट है आफ्टर द प्रॉपर्टी. नाउ वी स्टार्ट विद कोवेलेंट बॉन्ड. राइट. कोवेलेंट बॉन्ड, it is a force which binds atoms of same or different elements by mutual sharing of electrons, and this is called as covalent bond. ठीक. Means a covalent bond is a force of attraction which binds the atoms of same H2O2 N2 or different elements H2O NH3 बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल अमाउंट, यानी एक एटम एक शेयर करेगा तो दूसरा भी एक करे, एक एटम दो शेयर करेगा तो दूसरा भी दो करे. इसका मतलब ये देखो अगली लाइन में मैंने लिखा भी है, द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग. बराबर बराबर. ठीक. द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इन्वॉल्व्स इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में हम BP इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, कई एटम हो सकते हैं ना जिनमें के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, शेयरिंग कुछ कर रहे हो बाकी शेयर नहीं कर रहे हो, तो जो शेयरिंग नहीं करते हैं, जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और LP इलेक्ट्रॉन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ तो आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं, मैं थोड़ा और बता देता हूँ एक बार, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा. क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही. दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी. ठीक है कि नहीं. आपने छोटी क्लास में ऐसे देखा होगा ना, सर्कल बना देते हैं, यहाँ पे एक ऐसे बना दिया सर्कल दो, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये और ये दोनों मिलके ये शेयर कर लेंगे. ठीक. दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया. इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जिन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है बॉन्डिंग में, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl. ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे. ये रहे, यही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. अब नेक्स्ट है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो हम उसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन one pair of electron is shared between two atoms, then it is called as single covalent bond. जैसे वाटर में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में
H सिंगल बॉन्ड H, क्लोरीन में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, फ्लोरीन में F सिंगल बॉन्ड F, अमोनिया में H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये पहले पढ़ चुके आप लोग। When two pair of electrons are shared between two atoms, then it is called as double covalent bond। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 4 and 6। तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये, तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इथीन मॉलिक्यूल, इसको कि इथाइलिन भी बोलते हैं, C2H4, H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड, इथीन और इथाइलिन। When 3 pair of electrons are shared between two atoms, then it is called as triple covalent bond। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो ये 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसे ही C2H2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलिन और इथाइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो से पहले एक और पॉइंट बता देता हूं मैं, कोवैलेंसी। जैसे आयनिक बॉन्ड में होती है आयनिक वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैसे यहाँ पर कोवैलेंसी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर शेयरिंग वाइल फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। जैसे एग्जांपल है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोवैलेंसी 1। फ्लोरीन 1 करता है, कोवैलेंसी 1। ऑक्सीजन 2 करता है, कोवैलेंसी 2। नाइट्रोजन 3 करता है, कोवैलेंसी 3, एटसेट्रा। सम अदर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H और Cl 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन बनाते हैं, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सब, तो CH4। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, H कार्बन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, C नाइट्रोजन के साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, HCN। With that we come to an end of this video. We'll discuss properties and other theories of covalent bond in next video.